Hello everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNIPS Biology. So here is your practice set 6 of Zoology, which contains again 50 questions and it targets your Common PG Entrance Test 2023 and it will be helpful for all your upcoming PG Entrance Test. Okay, so let's start. Question number 1. Which dye is used to visualize DNA during electrophoresis? कुमासी ब्रिलियंट ब्लू, ब्रोमोफेनल ब्लू, मिथिलिन ब्लू या फिर इथिडियम ब्रोमाइड. ओके, वी नो दैट during electrophoresis process the ethidium bromide dye is used for the visualization of DNA. Okay, so answer is option D. Next come to question number 2. Which of the following is incorrect about pieces? क्या गलत है? Okay, they have streamlined body and a muscular tail that helps them in their movement. This is correct. They are warm-blooded animals and cannot regulate the body temperature. They are cold-blooded animals, right? तो ये तो एक गलत है. फिर their heart is two-chambered, ये सही है. Their skeleton is made up of cartilage and bone, ये भी सही है. So आंसर क्या होगा? B, क्योंकि पूछा है क्या गलत है, right? Next come to question number 3. Histone protein are rich in. So they are rich in what? Which amino acids? Option B, that is lysine and arginine. Okay, option B is the correct answer. Next, kinetochores are. They are proteins, DNA, enzymes या फिर chromosomes. They are proteins. Okay, option A is the correct answer. Next question number 5. DNA gyrase is required for solenoid formation, formation of nucleosomes, RNA synthesis या फिर supercoiling and relaxation of DNA. So DNA gyrase जो कि topoisomerase 2 है and it is required for your supercoiling and relaxation of DNA. Okay. Next come to question number 6. Telomerase repeat sequence in humans is. Human में telomerase repeat sequence क्या है? आपका TTAGGG. Okay. Option A. Clear? Next, question number 7. COT analysis curve. COT analysis or COT curve. It can provide information about all of the following except. Okay. Except दिया हुआ है मतलब सबके बारे में इंफॉर्मेशन देगा पर एक के बारे में नहीं देगा ऑप्शन में जो है. क्लियर? तो पहले जान लेते हैं कि COT एनालिसिस क्या है. COT एनालिसिस it is a biochemical technique which is used to find out the measure of repetitive DNA in a DNA sample. Okay, clear? And it is generally based on the principle of DNA renaturation. तो obviously repetitive DNA and DNA renaturation के बारे में वो बताएगा, right? It will provide information. Then आपका ऑप्शन है GC content. Okay, तो GC content के बारे में अगर हम देखें तो यही COT कर्व में आपका जीसी कंटेंट के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है पर टेम्परेचर डिपेंडेंट एक होता है प्रोसेस जिसमें जीसी में क्या होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और एटी में क्या होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट? तो वो दिखाता है कि कितनी स्मूथली और कितनी इजीली या कितना एनर्जी चाहिए वो डीनेचुरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने, रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने में. ओके, सो इट इज नॉट रिलेटेड. Understood? So COT curve can provide information about all the of the following except for your GC content. Clear? Next come to question number 8. Nucleotide base pairs usually present in nucleosomes are. Okay, कितने न्यूक्लियोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? नियर अबाउट 200. ओके, तो आपका 147 के आसपास रहेगा. क्लियर? 147 is the correct answer. Next come to question number 9. Fatty acid synthesis does not require. इनमें से क्या फैटी एसिड सिंथेसिस में जरूरत नहीं होता है? ओके, एसिटिल को एंजाइम ए, मैलोनिल को एंजाइम ए, NADH या फिर बायोटिन. ओके, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखो. यहाँ पे दिया हुआ है NADH, राइट? NADH पर कंसिडरिंग फैटी एसिड सिंथेसिस NADPH रिक्वायर होता है, right? NADPH is required in fatty acid synthesis, not NADH. During synthesis, NADPH is the reducing agent, cofactor. Clear? इसे हमें NADH के साथ confuse नहीं होना है. Okay? So यहाँ पे क्या नहीं चाहिए हमें?
NADH. Clear? So option C is the correct answer. Next question number 10. Which vitamin is necessary to maintain iron homeostasis? Okay, कौन सा vitamin? आपका ascorbic acid. Option A is the correct answer. Next come to question number 11. Which one of the following belongs to platyhelminthes? इनमें से क्या platyhelminthes को belong करता है? Plasmodium, trypanosome, Schistosoma या फिर Wuchereria. Clear? 11 का आंसर क्या होगा आपका? Schistosoma. Okay, option C, Schistosoma. तो considering trypanosoma and plasmodium, they belong to kingdom Protista, right? And Wuchereria आपका Aschelminthes को belong करता है, right? Next, question number 12. The scientific name of Asian tiger mosquito क्या है? Aedes albopictus. Option B is the correct answer. Next, question number 13. Which of the following enzymes has reverse transcriptase activity? Okay, we know that रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, राइट, जिसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है. पर इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है क्या है? टैक पॉलीमरेज, टेलोमरेज, हेलिकेज एंड लिनोफ्रैगमेंट, राइट. तो इनमें से क्या हेल्प करेगा? क्लियर? ये हमें देखना है. ये मत बोलना कि क्वेश्चन गलत है. क्लियर? तो देखो, तो आपका जो हेलिकेज होता है, ओके, क्लियर, जो हेलिकेज होता है दैट हैज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी. क्लियर? अनवाइंडिंग में हेल्प करता है, राइट. एंड कंसिडरिंग लिनो फ्रैगमेंट, वो क्या होता है? इट इज अ फ्रैगमेंट विच इज यूज्ड, विच हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, तो ये जो लिनो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इट हैज 5' to 3' polymerase activity, 3' to 5' exonuclease activity, but it lacks 5' to 3' exonuclease activity. Okay, so as a result, these activities and the lack of these 5' to 3' exonuclease activity make it very suitable for use in manipulating the DNA fragments in the test tube. Okay, as a result, it can be useful in converting single stranded DNA to double stranded DNA, मतलब formation of double stranded DNA from single stranded DNA. Okay, so 13 का आंसर आपका हेलिकेज होगा. This enzyme has reverse transcriptase activity. वो पूछा है, लिनो फ्रैगमेंट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लिए. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14. The amino acids are decoded by tRNA following mRNA sequence. Which amino acid has single codon? Okay, कौन से amino acid का single codon होता है? Tryptophan. Okay, it is the only amino acid which has only single codon. Okay, next, the first step of polymerase chain reaction is PCR का first step क्या है? Denaturation, annealing, extension या फिर priming. Okay, फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप होता है एनीलिंग, थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन. क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट, तो होगा क्या? डीनेचुरेशन. तो फर्स्ट स्टेप जो डीनेचुरेशन होता है उसमें क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ द टेम्पलेट इनटू द सिंगल स्ट्रैंड. ओके, देन एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स टू ईच ओरिजिनल स्ट्रैंड फॉर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस. नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द प्राइमर्स. ओके, क्लियर? तो पहले डीनेचुरेशन. Next, come to question number 16. Recent and accepted bacterial classification is based on. Okay, तो ये शायद पता नहीं होगा, but it is based on 16S rRNA. Okay, 16S rRNA gene sequences, they allow differentiation between organisms at the genus level across all the major phyla of bacteria. That's why it is the recent and accepted bacterial classification. Okay, basis of the recent and accepted bacterial classification. Next, 17. Infectious single-stranded RNA without any protein is called what? Viroid. Okay, जो कि small circular, short circular होते हैं, right? Short circular single-stranded RNA without any protein. Okay, and also they are infectious. They are known as what? Viroids. Clear? Next, which one of the following binds to 30S subunit of ribosome? इनमें से क्या राइबोसोम के 30S सबयूनिट के साथ बाइंड होता है? ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स है, राइट.
तो इनमें से क्या होगा, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, क्लोरामफेनिकल या फिर राइफोमाइसिन? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज व्हाट, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन के साथ साथ और एक भी है, और एक भी होता है आपका पारोमाइसिन, क्लियर, दैट ऑल्सो बाइंड्स टू द 30th subunit of ribosome. Okay, answer option B. Next, come to question number 19. An autonomous recessive disease in human is due to a gene X. How many alleles in a population are possible for a given X gene? Okay, कितने एलील पॉसिबल होंगे X जीन के लिए जो कि एक रिसेसिव ऑटोनोमस डिजीज कॉज करता है? क्लियर, तो ऑब्वियसली अगर वो रिसेसिव है तो दोनों एलील्स को रिसेसिव होना होगा फॉर एक्सप्रेशन, राइट, अदरवाइज इट विल बी अ कैरियर, right? 2 non-working copies of the gene will be required, right? So answer will be option A, that is 2. Next, come to question number 20. Position effect is due to, क्यों position effect? position में change होगा मतलब translocation होता है. Okay, B. Option B is the correct answer. Next, the part of brain regulating biological clock. कौन सा part? medulla, cortex, pituitary gland या फिर हाइपोथैलेमस? बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा जो SCN होता है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, ओके, उसमें रिसाइड करता है, which is present in the hypothalamus of brain and receives direct input from the eyes. Okay, so answer is option D, that is hypothalamus. Clear? Next, question number 22. Which of the following lack locomotory organelle? इनमें से किन में लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है? फ्लैजेलेट्स, राइजोपोडा, सिलिएट या फिर स्पोरोजोआ? क्या होता है? स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 23. वालेसिस लाइन इज प्रेजेंट इन बिटवीन ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियल रीजन्स, इथियोपियन एंड ओरिएंटल रीजन, नियोट्रॉपिकल एंड नियर्टिक रीजन या फिर पैलियार्टिक रीजन एंड इथियोपिया रीजन? क्या होगा? ऑप्शन A. Okay, 23, Oriental and Australian region. Clear? Next, question number 24. The alarming rate of depletion of biodiversity in recent years is mostly due to, क्यों biodiversity alarming rate में deplete हुआ है recent years में? Global warming, habitat destruction, pollution by pesticides and heavy metals या फिर ozone depletion की वजह से? Because of habitat destruction, the major reason, human caused reason, which has caused the alarming rate of depletion of biodiversity in recent years. Next, come to question number 25. A haltear is a vestibular organ of butterfly, modified forewing of beetle, balancing organ of housefly या फिर organ which is used by a male insect to attract female for mating? Okay, answer is what? It is the balancing organ of housefly. Okay, 25 का आंसर ऑप्शन C. Next, come to question number 26. In bivalves, which structure secretes pearl? Okay, कौन सा स्ट्रक्चर बाइवाल्व में पर्ल सिक्रेट करता है? पेरियोस्ट्रैकम लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर, नैक्रियस लेयर या फिर मैंटल लेयर? ओके, इट इज योर नैक्रियस लेयर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27. ऑस्फेरेडियम इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है आपका ऑस्फेरेडियम? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर ऑल्फैक्टरी सिस्टम? इट इज एसोसिएटेड विथ योर ऑल्फैक्टरी सिस्टम. ओके, नेक्स्ट, which of the modified nucleotide in the tRNA is responsible for ubal in codon anticodon? ओके, ubal हाइपोथेसिस को याद करो, क्या होता है? योसिन, आइनोसाइन, क्योसिन या फिर स्यूडो यूरिडिन? ओके, इट इज व्हाट? आइनोसाइन. क्लियर? इट इज द modified nucleotide in the tRNA which is responsible for ubal formation in codon anticodon. Okay, reaction. Next, 29. In eukaryotic cells, unfolded or misfolded proteins are degraded in, किसमें वो डिग्रेड हो जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटियोसोम, गोल्गी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इन व्हाट? योर प्रोटियोसोम. क्लियर? नेक्स्ट,
Question number 30. At what stage of the eukaryotic cell cycle the chromatin will be least compact? Okay, सबसे कम कॉम्पैक्ट होता है कौन से स्टेज में? ओके, सेल साइकिल के यूकैरियोटिक सेल में G1 फेज, माइटोसिस, एस फेज या फिर लेप्टोटिन. राइट, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इमेजेस याद करो, क्या क्या थ्योरी पढ़े हो वो याद करो. क्या होगा आपका? एस फेज. ओके, एस सी में. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31. The origin of the jaw in the gnathostomes is from the, okay, gill arc, bone supporting the cranium, notochord या फिर राथकिस पाउच. ओके, ग्नाथोस्टोम में जॉ कहां से ओरिजिन हुआ है? फ्रॉम गिल आर्क. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. ड्यूरिंग muscle contraction, calcium ions released from the sarcoplasmic reticulum binds to which one of the following to initiate the muscular contraction? muscular contraction को initiate करने के लिए muscle contraction process में कैल्शियम आयन जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है वो किसके साथ बाइंड होता है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन या फिर ओनली मायोसिन? ओके, द आंसर इज व्हाट? ट्रोपोनिन. Clear? Next, come to question number 33. Which of the following cells would likely be found in the tissue lining the organ that produces and releases mucus? Okay, जो organ mucus produce and release करता है उसके टिश्यू लाइनिंग में कौन सा सेल दिखाई देता है? गोबलेट सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस या फिर ऑस्टियोब्लास्ट्स? क्या आपका? गोबलेट cells. Option A. Next, question number 34. Which of the following is the major integrating link between the nervous and endocrine system and help to control the stress response? Okay, दो बातें हैं यहाँ पे कि स्ट्रेस रेस्पॉन्स कंट्रोल करता है और वो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम में एक इंटीग्रेटिंग लिंक है. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर थाइमस? इट इज द हाइपोथैलेमस. Okay. Next, question number 35. At isoelectric pH, a protein carries no charge, positive charge only, negative charge only या फिर zero net charge? Zero net charge. Right? isoelectric pH में प्रोटीन में नेट चार्ज जीरो होता है. क्लियर? नो चार्ज मत लिखना, नेट चार्ज क्या है? जीरो. अंडरस्टूड? 35 ऑप्शन डी. नेक्स्ट 36. एम्पिसिलिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल. एम्पिसिलिन क्या इनहिबिट करता है बैक्टीरिया में? डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर सेल वॉल सिंथेसिस? इट इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फ्रॉग टैडपोल? फ्रॉग टैडपोल के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? कितने? 2. राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. वाई शेप्ड शेवरॉन बोन इज प्रेजेंट इन? किसमें प्रेजेंट होता है वाई शेप्ड शेवरॉन बोन? थोरेसिक वर्टिब्रे ऑफ मैमल्स, सर्विकल वर्टिब्रे ऑफ बर्ड, कॉर्डल वर्टिब्रे ऑफ रेप्टाइल या फिर लुम्बर वर्टिब्रे ऑफ एम्फीबियन? इट इज प्रेजेंट इन व्हाट? योर कॉर्डल वर्टिब्रे ऑफ रेप्टाइल. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पिक द इंटेग्यूमेंट मॉडिफिकेशन व्हिच इज नॉट एपिडर्मल डेरिवेटिव. व्हिच इज नॉट, इनमें से क्या एपिडर्मल डेरिवेटिव नहीं है? कौन सा इंटेग्यूमेंट मॉडिफिकेशन? ओके, बीक, एंटलर्स, हुक या क्लॉज? 39 का आंसर ऑप्शन बी, एंटलर्स. क्लियर? नेक्स्ट, ओविडक्ट इन वर्टिब्रे इज मॉडिफाइड. वुल्फियन डक्ट, मुलरियन डक्ट, इंग्विनल कैनल या फिर यूरिनरी डक्ट? किसका मॉडिफिकेशन है? मुलरियन डक्ट का. ओके, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. थायरॉक्सिन इज अ, थायरॉक्सिन क्या है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइड, पेप्टाइड, फैटी एसिड डेरिवेटिव? इट इज द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच सिस्टम इज एक्टिव अंडर स्ट्रेस? स्ट्रेस के अंदर अंडर जब स्ट्रेस में हम होते हैं कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रैपिड रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल चैम्बर या फिर रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स? एक्टिव होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके. नेक्स्ट 43. द मेजर पाथवे प्रोड्यूसिंग NADPH इज?
ओके, मेजर पाथवे क्या है जो NADPH प्रोड्यूस करता है? DC साइकिल, फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन पाथवे या फिर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे? इट इज द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. प्रिकॉर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस इज? क्या है प्रिकॉर्सर? ट्रिप्टोफैन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरिक एसिड या फिर ग्लाइकोजन? इट इज कोलेस्ट्रॉल. ओके, ऑप्शन बी इज द correct answer. Next question number 45. In Drosophila, sperm enters in the egg through. Okay, कैसे sperm enter करता है किसके अंदर से? Micropyle, aeropyle, pole cells या फिर germ cells? It enters through micropyle. Okay. Next come to question number 46. Exon skipping is associated with nonsense mutation, promoter mutation, splice site mutation या फिर silent mutation? It is associated with the splice site mutations. Option C is the correct answer. Next, which of the following genotype causes Klinefelter syndrome? कौन सा genotype? देखो syndrome विंड्रोम ये सब जो है, जो diseases हैं, उनमें से questions तो एक दो आएंगे ही. क्लियर? तो थोड़ा देख के जाना. X0, XXY, XX या फिर XYY. Klinefelter syndrome के बारे में पूछा है. It is XXY. बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं. Next come to question number 48. In a Robertsonian translocation, fusion occurs at? Robertsonian translocation में fusion कब होता है? कहाँ होता है? Telomeres, centromeres, long terminal repeats या फिर ends of the long arms? Okay, क्या होगा? Option B, centromeres. Clear? Next, repeat core sequences consisting of 2, 3 or 4 base pairs are known as? क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, माइक्रोसैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स या फिर टेलोमियर्स? इट इज नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ अ सेल इज कमिटेड टू हैव अ पर्टिकुलर फेट, इट इज कॉल्ड? डेवलपमेंट में अगर सेल का एक पर्टिकुलर फेट है, उसके साथ वो कमिटेड है, ओके, एक पर्टिकुलर फेट के साथ, राइट, मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए ही वो बनाया गया है, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट या फिर डिफरेंशिएटेड या डिटरमिन्ड? 50 का आंसर क्या है? डिटरमिन्ड. ओके, क्लियर? उसका फेट वही ही है, इट इज कांस्टेंट. क्लियर? सो 50 का आंसर ऑप्शन डी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस सेट 6 ऑफ जूलॉजी. अगर कोई भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट सेक्शन. एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब, हिट लाइक, शेयर आवर वीडियोस, and if you have not yet pressed that bell icon also, do press it and select all so that you can get all the notifications whenever a new video comes up from our channel. So मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. Thank you.